Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Rural Administration, which is one of the chapters in the civics, and the number of the chapter is 6. This is your chapter 6. So in this chapter we are discussing about the administration of rural areas, how the rural areas are administered. And in this we have discussed कि when a quarrel is there between two people over the land, then in that situation what happened? Raghu and Mohan were there, and there was an argument between Mohan and Raghu, because Mohan was of the opinion that Raghu has shifted the Bandh, and in this way he has captured some of the land of Mohan. And when this argument broke out, then we see that the Raghu started to beating up Mohan. His helpers were there in his house, and they also started beating him up. And in this quarrel we also see that Raghu is a very influential person, because he is owning a big piece of land. Not only this, his family also owns many fields, and his uncle was also the sarpanch of the village. And Mohan is a very small farmer. That is why we see that Mohan was not very willing to start quarrel with Raghu, but the situation was such that Mohan has to start this argument. And then after getting badly hurt, Mohan went to the police station in order to write his complaint. And the neighbors who were there at that time when he was beaten up, they also went with him. And in the process we have also discussed about the area of a police station. There were some people who were with Mohan. They were of the opinion that they should go to the police station of the city, so that if they go to the main police station in the city or town, then it will be more beneficial. But actually we can't do this, because every police station has its area, and whatever crime or whatever incidents are happening in that area, that should be reported in that police station only. This is the rule. So we also came to know this, है ना, हमें भी इस बात की जानकारी मिलती है in the process. And then we saw that Mohan reached police station, and he met the SHO, who is called station house officer. And he explained the incident, and he said that he wanted that his complaint should be written, but the SHO was not ready to write the complaint. And he was saying that it is such an unimportant complaint, such a minor complaint, and he do not want to waste his time on writing down such an unimportant complaint. And then we see that the neighbors who were there with Mohan, they came inside, and they again insisted that his case must be registered. Then the SHO, he came under pressure, and then he wrote the complaint of Mohan. And after writing the complaint, what is done? What is the process? The process is ki as constable will be sent at the place of incident, and he will investigate the incident ki in reality such incident happened or not, and if the incident happened, who are responsible for that. And on the basis of this investigation, the police will prepare a report. So this is the way of functioning
the police. And now we come to a different post that is there in the rural administration, and that is Patwari. So now in this quarrel, we have seen that Mohan and Raghu, they heated, they were having very heated argument, and the argument was regarding the piece of land, because both of them were sharing the common boundary, and the allegation was from the side of the Mohan that this boundary was shifted. And now after that this Mohan was beaten up, and then the case was registered. So now we want to know, can this argument regarding the shifting of the boundary, can it be settled in a peaceful manner? If we don't go to the police, instead of going to the police, is there any other way through which this matter can be settled? So what we find ki, yes, this matter can be settled by another way also, and this is about the records of the land. In a village, the people are owning the land, and all these land which is owned by people, there is record of everything. Who is the owner of the land, what is the area of the land, everything is there. This measuring of land and keeping the record of the land, this is the main work of the Patwari. Patwari is responsible for measuring the land and keeping records of the land. So we find that this Patwari is known by different names in different states. In some villages, such officers which we are calling Patwari, they are known as Lekpal. In some other villages, they are known as Kanun Go, Lekpal, Kanun Go, and in some other villages, they are also known as Karmachari or village officer. All these are names of Patwari. We can write it like Lekpal, Kanun Go, Karmachari, or also village officer. These are all names of पटवारी. ये सब पटवारी के ही नाम होते हैं. हम डिफरेंट स्टेट्स में उनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी विल यूज ओनली पटवारी. ओके, एंड we see that each patwari is responsible for a group of village. For one group of village, one patwari is there, and the patwari, the function is to maintain the records of the land, and then updating is also done by patwari, because there is always change in the ownership. Sometimes people sell their land, sometimes people purchase the land. So in this way वी फाइंड कि जो ओनरशिप है वो बदलती रहती है. इसको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द पटवारी. ओके, एंड इन योर बुक you will see that one map is given regarding the land of the village, and details is also there. So this is the register of the patwari.
which is kept by Patwari in his register. Every record is kept, but map is also there, then details is also there, and in that we will discuss the map. We will see how this map is, what are the details of the map. So you can see on page number 52, this map is given. Page 52, you will see map is there, okay, and one table is also there, and this map is the plots of the land of different people are indicated by numbers like 1 2 3 4 5, okay, and then key is also there. In the key you can see बाउंड्री के लिए एक लाइन बनी है, देन वेल के लिए ये इस तरीके से वेल को ये सिंबलाइज कर रहा है, ओके। इसी तरह से कच्चा रोड, पक्का रोड, ग्रास लैंड, ट्री, सबका वो की बना हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन जियोग्राफी जब हम लोग मैप पढ़ रहे थे। तो ये मैप है, एंड अदर देन दिस वी सी द कॉल टेबल इज ऑल्सो देयर, एंड इन दैट टेबल देर आर मेनी कॉलम्स। लाइक सबसे पहले तो नंबर्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो पीसेस ऑफ लैंड जिसका मैप है उसमें क्या है कि सारे जो डिफरेंट पीसेस ऑफ लैंड है उनका नंबरिंग किया हुआ है, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इट इज डन इन दिस वे, है ना। तो जो कॉलम है हमारा, जो टेबल है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है इट इज अबाउट नंबर, देन जैसे फर्स्ट नंबर है, नंबर 1 जो है वो उसकी एरिया कितनी है, फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर दिया है, देन एरिया कितनी है ये बताया गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैंड, देन और एरिया जो है वो हेक्टेयर में है। उसके बाद का जो कॉलम है उसमें ओनर के बारे में बताया गया है कि हु इज द ओनर ऑफ द लैंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ द ओनर और द हस्बैंड ऑफ द ओनर, देन उसका एड्रेस क्या है ये बताया गया है ना। एंड इसी तरह से जो इसके नेक्स्ट कॉलम है उसमें क्या बताया गया है कि जो लैंड है उस पे फार्मर जो है वो किसी और को रेंट पे दिया जाता है, और अगर किसी को रेंट पे दिया जाता है तो किसको दिया जाता है। वी आर नोइंग ऑल दीज थिंग्स। जैसे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती है वो पूरे के पूरे लैंड पे दे डू नॉट डू फार्मिंग ऑन देयर ओन, दे हायर सम लेबरर्स, है ना, किसी को वो हायर करते हैं, किसी को रेंट पे वो देते हैं। तो इस जो नेक्स्ट वाली कॉलम है उसमें ये होता है कि अगर रेंट पे दिया है तो किसको रेंट पे दिया है, उसका नाम, उसके डिटेल्स होते हैं। फिर कितने एरिया पे कल्टीवेशन हुआ, जितना एरिया है उस पूरी एरिया पे कल्टीवेशन हुआ या कुछ एरिया पे कल्टीवेशन नहीं हुआ, अगर कल्टीवेशन हुआ तो क्या क्या उस पर क्रॉप्स आए, कौन कौन से क्रॉप को ग्रो किया गया, एक ही सिंगल क्रॉप हुआ पूरे एरिया पे या कुछ एरिया पे एक क्रॉप हुआ, कुछ एरिया पे दूसरे क्रॉप हुए, इस तरह से देखा जाता है। फिर उस जो लैंड है उस पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लाइक इरिगेशन की फैसिलिटी कि वहाँ पर ये वेल है या हैंड पंप है या वॉट एवर इज देयर। तो इस तरह से ये पूरा एक टेबल बना हुआ है ना, यू कैन सी, एंड देन वी कैन सी जो फर्स्ट नंबर हम दिख रहा है दैट इज द लैंड ऑफ रघु, है ना, मोहन की लैंड है। फर्स्ट नंबर वाले जो लैंड है वो किसकी है, मोहन की लैंड है, और उसकी जो एरिया है वो 0.75 हेक्टेयर है ना। और ये जो मोहन की लैंड है जिसकी एरिया 0.75 हेक्टेयर है उस पर मोहन खुद ही फार्मिंग करता है, वो किसी को रेंट पे नहीं देता है। और पूरे की पूरी जितनी भी 0.75 हेक्टेयर जितनी लैंड है उस पूरे पे खेती होती है, और कितनी क्या चीज़ की खेती होती है, सोयाबीन की खेती होती है, ओके। और इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो सेकंड नंबर जिसकी की हुई है वो रघु की लैंड है। रघु की लैंड है जिसके पास कितना लैंड है, 3 हेक्टेयर। अगर हम लोग कंपैरिजन करें, मोहन की लैंड है 0.75 हेक्टेयर और रघु की लैंड है 3 हेक्टेयर।
तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। दैट इज़ वाई रघु एक मतलब बड़ा किसान कहला रहा है और मोहन की कंडीशन ख़राब है, बिकॉज ये 0.75 है, 1 हेक्टेयर से भी कम है। और रघु भी जो है वो खुद ही फार्मिंग करता है, किसी को वो रेंट पे नहीं देता है। और उसकी जो लैंड है उस पे इफ़ यू कैन सी कि कितनी एरिया पे क्रॉप्स ग्रोन होता है, तो वो पूरी की पूरी एरिया पे क्रॉप ग्रोन। सो रघु जो है वो 2.75 हेक्टेयर पे कल्टीवेशन करता है और 0.25 लैंड जो है, हेक्टेयर लैंड जो है वो उसकी फेल हो जाती है। और उसके लैंड पे फैसिलिटी भी है जिसपे कि वेल है ना। तो दिस इज द अबाउट द रजिस्टर ऑफ पटवारी। पटवारी के रजिस्टर में इसी तरह से सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो रहते हैं। तो अब वी हैव सीन दैट देयर वाज argument, there was quarrel between Raghu and Mohan, and in this quarrel what we find that the quarrel was regarding ki Raghu has shifted the band, Raghu has shifted the boundary. It was the allegation of Mohan. So if this matter comes to Patwari, how will Patwari solve this situation? The Patwari will measure the land of both the people, okay. And when he will measure the land of both the people, so first of all Patwari will measure the land of both the people, Mohan and Raghu, and then he will compare them with the measurement on the map, what is given on the map, what is there in the record of Patwari, and what is the area of the land which is present actually. उन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड देन it can be decided कि बंद has been shifted or not, because if there is variation, suppose जो लैंड हमें एक्चुअल दिख रहा है, जो लैंड है एक्चुअली और जो रिकॉर्ड में है, उन दोनों के मेजरमेंट में डिफरेंस आ रहा है। जिसे रिकॉर्ड में है कि रघु की जो लैंड है वो 3 हेक्टेयर है और मोहन की लैंड 0.75 हेक्टेयर है। अगर जब मेजर करते हैं पटवारी तो व्हाट ही फाइंड्स कि रघु की जो लैंड है वो 3.25 हेक्टेयर हो गई है और मोहन की 0.5 हेक्टेयर है। तो इट मीन्स कि रघु ने शिफ्ट किया है बंद को। एंड इफ सपोज जब वो मेजरमेंट करते हैं तो ही फाइंड्स कि नहीं, रघु की 3 हेक्टेयर ही है और मोहन की 0.75 हेक्टेयर ही है। इट मीन्स कि नो, द बंद हैज नॉट बीन शिफ्टेड बाय रघु। सो दिस इज द वे पटवारी सॉल्व द दिस टाइप ऑफ क्वेरल। जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको पटवारी पीसफुली सॉल्व कर सकता है। इसमें किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। हम पटवारी के पास जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, ओके। तो ये हो गया हमारा हाउ पटवारी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कैन सॉल्व द लैंड डिस्प्यूट्स बिटवीन पीपल। And now we see that the Patwari also does some other functions, like the Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers. Farmers are supposed to pay land revenue to the government. तो ये जो government को land revenue देते हैं इसका collection कौन करता है? पटवारी land revenue का collection करते हैं। And not only this, the Patwari also provide information to the government about the crops grown in the area which is under the Patwari. जो भी पटवारी के अंडर एरिया होता है उसमें जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसके बारे में वो गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देता है। एंड ये इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी की पूरी डेटा निकालती है कि हमारी कंट्री में कितना, कौन सा क्रॉप कितना होता है, किस एरिया, कितने एरिया में होता है, कितना प्रोडक्शन हुआ, एवरीथिंग इज डन ऑन दैट बेसिस ओनली। और हाउ पटवारी गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, ये जो हमने देखा था ना, दिस टेबल वाज देयर, तो इसी टेबल के बेसिस पे वो गवर्नमेंट को सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि इसमें ये सारा रहता है कि कितना एरिया कल्टीवेशन हुआ, कितने एरिया में कौन सा क्रॉप हुआ, सेकंड क्रॉप हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो कौन सा क्रॉप हुआ, कितने एरिया पे हुआ, तो एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर।
तो ये सारे जो अपने रिकॉर्ड वो रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो गवर्नमेंट को ये देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नीड्स टू बी अपडेटेड, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक बार रिकॉर्ड बन गया तो मतलब वो हो गया, नहीं, इट नीड्स टू बी चेंज्ड वॉट एवर चेंजेस आर हैपनिंग। लाइक इस साल किसी ने जितने एरिया पे कल्टीवेशन किया, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उतनी ही एरिया पे नेक्स्ट ईयर भी कल्टीवेशन हो सकता है, नेक्स्ट ईयर थोड़े कम एरिया पे करे, फैलो लैंड ज़्यादा छोड़ दिया जाए या फिर कुछ भी फैलो लैंड न छोड़ा जाए, पूरे एरिया पे कल्टीवेशन कर दिया जाए। तो चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो ये सारे जो भी चेंजेस होते हैं वो सब जो है वो पटवारी अपने रिकॉर्ड में रखता है। ओके, तो इस तरह से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन पटवारी को मिलती है वो उस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट को देते हैं। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ पटवारी। ओके, एंड नाउ वी विल सी there are some other things also, like all this work is done by the revenue department of the government. Just we are talking about patwari. So this patwari is a part of revenue department of the government, and we can say that the patwari is the बिल्कुल जो सबसे नीचे के लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड काम करते हैं, दे आर पटवारी। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी पटवारी के बारे में, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल है पटवारी, एंड ही इज एट द बिल्कुल सबसे नीचे का लेवल पे, सबसे फर्स्ट लेवल हम कह सकते हैं, ही इज एट द फर्स्ट लेवल ऑफ दिस डिपार्टमेंट। और व्हाट वी फाइंड कि हमारी कंट्री में व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। वी हैव डिस्कस्ड, हम लोग ये सब चीज़ें काफ़ी कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना। जो हमारी कंट्री है, पूरी की पूरी कंट्री है, कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, 28 स्टेट्स आर देयर, और फिर इन स्टेट्स को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो जैसे हमारी स्टेट्स हैं, स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स जो है फिर इनको डिवाइड किया गया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीज़न हुआ है वो उनको हम सब डिवीज़न कहते हैं, सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। हर जगह उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीज़न हुआ है उसको कहीं पर तहसील भी कहते हैं और कहीं पर तालुका भी कहते हैं, ये डिफरेंट नेम से इसको जानते हैं। तो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, one state is divided into districts, then one district is divided into tehsil or taluka. Okay, so here what we find कि ये जो हम districts की बात कर रहे हैं, district level पे भी ये होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जो हम जिस गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो उनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ही इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और इनके नीचे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं तहसीलदार। और ये तहसीलदार किस लेवल पे होते हैं, ये तहसील या तालुका के लेवल पे।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर डिस्ट्रिक्ट को बहुत सारे सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया जिनको तहसील या तालुका कह रहे हैं, और इस लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं उनको हम तहसीलदार कहते हैं। ओके, और ये तहसीलदार के नीचे जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो पटवारी होते हैं। दीज आर पटवारी। तहसीलदार के नीचे के जो पोस्ट पे जो होते हैं उन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनको हम पटवारी कहते हैं। एंड दीज पटवारीज आर एट द लेवल ऑफ विलेज। ठीक है, जो सबसे पहला जो हमारा यूनिट होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो विलेज होता है। विलेज लेवल पे ही हमने देखा था क्या होता है, ग्राम पंचायत, है ना। और ये जो पटवारी हैं दे आर ऑल्सो एट द विलेज लेवल। और विलेज के ऊपर तहसील या तालुका है जहां पर कौन होते हैं, तहसीलदार। एंड दीज तहसीलदार आर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। whatever पटवारी is doing that is supervised by the तहसीलदार। और इस तहसील या तालुका के ऊपर डिस्ट्रिक्ट होती है जिसमें कि कौन रेवेन्यू ऑफिसर को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एंड ही इज देयर टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द तहसीलदार। तो इस तरह से ये एक इस तरीके से काम करता है, एक हायरार्किकल सिस्टम है। सबसे नीचे पटवारी, फिर तहसीलदार, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो जो है उनका काम यही है कि तहसीलदार के कामों को सुपरवाइज करना। और तहसीलदार जो होते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं, लाइक दे हियर डिस्प्यूट्स, जो भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं वो वहाँ पर तहसीलदार के पास जा कर के उसको सुलझाया जाता है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको उस तरह से वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। ओके, देन दीज तहसीलदार ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड दे ऑल्सो इंश्योर दैट जो भी रिकॉर्ड रख रहा है पटवारी वो सही हो। ऐसा नहीं कि कुछ गलत रिकॉर्ड पटवारी के पास हो, तो पटवारी के काम को सुपरवाइज करना कि रिकॉर्ड उसने सही रखी है या नहीं, देन रेवेन्यू का कलेक्शन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। एंड दीज तहसीलदार और ऑल्सो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि फार्मर्स, इफ द फार्मर्स वांट to obtain a copy of their record, then they should get it in an easy manner, है ना। जैसे हमारे पास जो भी लैंड है हमें उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वी गेट इट फ्रॉम द तहसीलदार। और इसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट जो होती है, लाइक हमारे वी हैव सच सिस्टम इन विच some people belonging to particular caste they get benefit from the government। तो हम उसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, इसके लिए हमें कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, देन ओनली वी कैन अवेल द बेनिफिट। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलता है, यही तहसीलदार से मिलता है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो तहसीलदार है उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और इसमें हम देखेंगे कि फार्मर्स को कई बार मतलब लैंड रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनको कभी अपने लैंड को बेचना है ना। इफ दे वांट टू सेल दैट लैंड देन दे नीड टू हैव देयर डॉक्यूमेंट विथ मैप ऑल्सो। और इस तरह का जब भी काम उनको करना होता है तो वो तहसीलदार से अपनी डॉक्यूमेंट मांगते हैं और उसके लिए उन्हें कुछ फीस भी देनी पड़ती है। वो निकलवाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए उनको फीस भी देनी पड़ती है। और मैनी टाइम्स इट इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट फार्मर्स जो है उनको प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट दिस डॉक्यूमेंट। एंड इन सम स्टेट्स व्हाट वी फाइंड कि ऑल दीज थिंग्स आर डन कंप्यूटराइज्ड एंड कंप्यूटर से बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम होता है। एंड ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पर कि जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो पंचायत ऑफिस में ही रख दिए गए हैं ताकि जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। सो फार्मर्स जो हैं
उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि जब भी लाइक कभी वो कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं किसी से, या फिर वो अपने प्लॉट को बेचना चाह रहे हैं, है ना। कभी होता है कि जो फार्मर होते हैं उनको लोन लेना होता है, तो अगर उनको बैंक से लोन लेना है तो फिर बैंक में उनको अपने लैंड का डॉक्यूमेंट पेपर्स उन्हें जमा करना होगा, है ना। तो इस तरह से कभी होता है कि फार्मर जो है उनको अपने लैंड में जैसे इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, वेल लगवाना है, वेल डिग करवाना है, या किसी भी तरह से बोरिंग करानी है, तो वैसे में क्या होगा कि अगर उसको उस काम के लिए भी बैंक से लोन लेना है तो भी उसको वो लैंड के पेपर की ज़रूरत पड़ती है। देन कभी कभी क्या होता है कि एक फैमिली में डिवीज़न होता है, लाइक एक फादर हैं, उनके अगर जो भी बच्चे हैं उनके बीच में लैंड को डिवाइड करना है, तो जब इस तरह से डिवीज़न करना होता है लैंड को, तो भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो लैंड का डॉक्यूमेंट होना। तो इन सब रीज़न से फार्मर्स को लैंड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, एंड तहसीलदार इज़ देयर टू provide them this land document. So this is about the system of rural administration in our country, and in the next class we will discuss a related topic, like अभी हमने कहा कि एक फार्मर है, उसके बच्चे हैं और उनके बीच में वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इशू है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।